Hey Jaspreet. Hi. This is actually going to be like a new kind of a session which I want to introduce. मैं ये कर रहा हूँ. Jaspreet, you need to hang around here. Malhar, hi. So this session is basically about the independent music scene. तुम लोग को सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज़? You guys can hear me. जसप्रीत, मल्हार, सुनाई दे रहा है? Cool. So basically, the idea behind this. Hey DJ, hi Anthony, how are you? So I wanted to speak with you guys about also going to bring in an artist here. Like I'll start featuring artists and I'll also start featuring the independent artist. And the basic idea is about discussing about the independent music scene out here in Bombay. क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? What are the basic challenges? Me coming from a very different background, like I worked with Saregama, I worked with certain other record labels, and क्या क्या challenges हुआ है? What are the challenges that we artists are facing? हम लोग क्या problem हो रहा है? Hi Mix. So couple of small discussions that I want to have with you guys. I'm going to bring you guys on a discussion with me as well. I'm going to keep it very short and crisp, around 5 to 10 minutes. I'm going to ask you like 2 to 3 questions each and every independent artist, and that's how we're going to understand the entire scenario. And I think people should know the record labels who are there in the industry and whosoever are there, how what are the challenges the artists are facing, what are the kind of exploitations that has been happening, and in a way, what are the challenges that the other people from the record label are also facing. This is something which is very crucial for us and for us to also understand. So let's see. That's how these things are going to be changed, because the market in India is very different, and I think we all are victims of the same industry, but on the other hand, we have to also grow. We also have to bring about a change in this industry. Hi Dinesh. Hi Daisy. Daisy is my school friend actually, a long time. Abhay. Hey Abhay. Yeah. Abhay, I just want you to join so that we can start with it. Hi Dinesh. Good to see you. So Dinesh, we're going to have this conversation with a couple of good artists today. The idea is actually to understand their perspective and bring some, put some lights. Hold on. I'm trying to bring Abhay on the call. Hey Abhay, हेलो how are you? ऑल गुड भैया कैसे हैं आप मैं तो ठीक हूँ यार. So guys, let me introduce Abhay Tyagi. Abhay Tyagi is one of the upcoming, independent artists of the country. Very different kind of a guy, young, and he has released a couple of songs with Saregama. He has released a song with Just Music, and he has been working with a lot of other independent, record labels and all. So Abhay, the reason I called you in because just first I would like you to introduce yourself to all the people who are here. We have a lot of artists, we have a lot of production guys, people from the जी industry, जो देख रहा है the conversation. So the conversation that we have, I'm not going to pull it long. Probably it's going to be like say around for 5-10 minutes. Ask you a couple of questions कि क्या चल रहा है क्या नहीं. What are the challenges that you think that you are facing in the independent scene in India? क्या problem है? First and foremost, just introduce yourself, Abhay, so that I can take the conversation forward. थैंक यू सूर्य भाई माय नेम इज़ अभय त्यागी और आई एम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और जस्ट टू नो कि कुछ गाने हैं जो मैं भैया के साथ कर रहा हूँ और आगे कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है मुझे और जितना भी मैंने किया है एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज और
इंस्पिरेशंस जो कि जैसे भैया हैं और अर्ल एडगर हैं, अनिक भैया हैं, इन सब की इंस्पिरेशन से मैं आज कुछ चीज़ें सीख पा रहा हूँ और मैं कर पा रहा हूँ. सो या ग्रेट यार. सो अभय, मुझे दो तीन क्वेश्चन पूछना था. वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू, बट वेरी दिस क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट. ठीक है. सो द आइडिया इज दैट यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री. ठीक है. ध्रुवन ध्रुवन भाई, का कमेंट इज वेरी नाइस. ध्रुव 10 रुपए की पेप्सी, त्यागी भाई, जो भी हो. So the idea is that we know each other for almost a year right now, and हम लोग देख रहे हैं कि क्या सीन है, the kind of challenges that you are facing right now in this industry. First and foremost, I would like to ask you, what do you think about the payment structure out here? क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? Are you happy working, selling your songs? और अगर तू गाना दे रहा है, कितना टाइम में तुझे अपना पैसा मिल रहा है? और what are the issues that you are facing? और अगर तू चाहता है कि मैं अपना गाना डिस्ट्रीब्यूट करूं, if you think that I want to distribute my songs, and what is it that you want to in return? So are you focused on earning money from the industry, or you want yourself to be there in the limelight? तेरा गाना सब जगह जाए, लोग तुझे जाने, लोग तुझे पहचाने. What is it that you feel like? काफी सारे क्वेश्चंस आपने एक ही बार में पूछ लिए मुझसे. Today आराम से take your time and give it, because I want people to know. मुझे लगता है कि एज अ बिगनर इस इंडस्ट्री में नंबर्स कि आपको नंबर्स कितने हैं, आपको व्यूज कितने हैं, आपको कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, उससे से आपको काम मिलता है. बेसिकली किसी लेबल की बात नहीं करूँगा मैं. एज एन ऑडियंस और एज अ आर्टिस्ट मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी इंडिया में, पूरे इंडिया में जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो एक्टर हैं, चाहे वो डायरेक्टर है, राइटर है, सिंगर है, जो आर्टिस्ट हैं, सभी के साथ में प्रॉब्लम्स बस नंबरिंग से है. क्योंकि Okay, just one sec, Abhay. My business partner Devdut Chaudhary has also joined. Devdut, welcome. This is just a conversation with Abhay Tyagi, and we have a lot of other artists and people who has joined. We were discussing about what are the challenges that artists are facing in the industry in terms of payments, in terms of their song distribution. Couple of small things. Abhay, please carry on. यस यस यस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्कार और वेलकम कि आप हमको सुन पा रहे हैं. सो मैं बात कंटिन्यू करता हूँ. तो सारे आर्टिस्ट के साथ नंबरिंग का ही सीन है, जिसमें कि मुझे लगता है कि जल्दी हो रहा है धीरे धीरे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, और जो इंडी म्यूजिक का आज ज़माना आ गया है, जिससे इंस्टा के भी थ्रू काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू रिच मिल रही है एक यूनिक सॉन्ग को या एक डिफरेंट वाइब को, और प्रमोशंस के तरीके बदल गए हैं. उस वजह से चीज़ें थोड़ी सी सही भी हो रही हैं, और जो पहले थी उसे हम समझ भी पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट. तो बाकी लेबल्स जितने भी लेबल्स हैं एंटायर इन इंडिया, वो सभी, उन सबसे बस एक ही शिकायत है कि नंबरिंग्स ना देखें, आर्टिस्ट की जो एक कहते हैं कि उनका जो स्पार्क है, उनका जो एक टैलेंट है, उसे देखा जाए तो ही वही सही रहेगा सभी के लिए. और But रही हाँ, तो एक क्वेश्चन मुझे ये है तेरे से कि देख, if you're talking about artist now, आज का इंडस्ट्री में अगर if you have seen in any record label, they first go and check the numbers. ठीक है, वो देखते हैं कि numbers क्या है. बट क्वेश्चन ये है कि भाई अगर इंडिया में आज सब रिकॉर्ड लेबल्स दे आर ओनली वर्किंग टू मेक द आर्टिस्ट हु आर बिगर, उन लोग को ही अगर दे वांट टू मेक देम बिगर, व्हाट अबाउट द जूनियर आर्टिस्ट, व्हाट अबाउट द फ्रेशर्स? बहुत सारे नए आर्टिस्ट हैं जिसको आना है, पीपल हु वांट्स टू कम डाउन इन द इंडस्ट्री, हु वांट्स टू रिलीज देयर सॉन्ग्स. ठीक है भाई, अगर आज तुम मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो फिर मेरे नंबर्स बढ़ेगा कैसे? That's the question, right? Today, you coming in, or anybody who else who's in the market, who is completely into the production and independent artists, ये लोग जो आ रहे हैं, so the idea is that यार तुम्हारे पास numbers नहीं है बोल के मैं तुमको नहीं ले रहा हूँ. Why is this thing happening? ये क्यों हो क्यों रहा है? होना तो नहीं चाहिए ना ये. इसीलिए क्योंकि So Udilicious has also joined. Hi Udi. So
we keep on having this conversation, you know. yes, yes, मुझे ये लगता yes, है कि because of मुझे ये लगता है कि तू मुझे बता, management. हाँ, तू मुझे बता कि आज इंडस्ट्री में एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए। एक आर्टिस्ट को चाहिए कि यार मेरा गाना निकले, ठीक है, कोई मुझे सपोर्ट करे गाने के लिए, गाना मेरा ढंग से प्रमोशन हो, गाना मेरा ढंग से यू नो मार्केटिंग हो, एंड देन मैं लाइव शोज करूँ, राइट। और इससे बढ़कर क्या चाहिए, तू मुझे बता। राइट, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि, और ये सही चीज भी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी फील्ड में अगर हम जाएंगे ना तो वहां पर भी यही है। और वो इसीलिए है क्योंकि सब फेम के पीछे ही है। कहीं ना कहीं फेम की वजह से पीआर काम करता है और आपको काम ला कर देता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर कोई नंबरिंग इसलिए मांगता है क्योंकि वो सारे सारे बिजनेसमैन हैं। अगर आज हम लोग भी एज ए लेबल एस्टेब्लिश्ड होंगे तो हमें भी वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी, जो कि गलत नहीं है एक, बट आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव से फिर वो सही नहीं है, क्योंकि हम भी जो मेहनत कर रहे हैं, हम जैसे जितने भी आर्टिस्ट जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या चीज हमारे लिए यहाँ पर सही है। जैसे कि कोई छोटी सी अपॉर्चुनिटी आ गई और हमने उसे पकड़ लिया कि अरे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर हो सकता था कि वो उससे भी अच्छा हो सकता था। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। मुझे अभी तक पेशेंस ही काम दिला है। और बट यू नो मैं और एक चीज ये सोचता हूँ कि देख, आज जो बॉम्बे में आ रहे हैं, हम लोग सब बाहर से हैं, हम लोग कोई बॉम्बे के नहीं है। मैं असम से हूँ, कलकत्ता से हूँ, तू बाहर से है। बहुत सारे आर्टिस्ट जो आते हैं बॉम्बे में आज, ड्रीम्स लेके आते हैं, सपने लेके आते हैं, घर वर छोड़ के सब कुछ, दे लीव एवरीथिंग एंड दे कम डाउन टू बॉम्बे, दे वांट टू बिकम बिग एंड दे कीप ऑन स्ट्रगलिंग। एक टाइम के बाद व्हेन यू गेट द राइट पीपल, राइट कॉन्टैक्ट, तू चला जाता है कोई रिकॉर्डेबल के पास, और रिकॉर्डेबल तेरे पास क्या ऑप्शन रख देते, दो ऑप्शन रख देते कि भाई मुझे तुम गाना फ्री में दो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा नहीं, नंबर्स नहीं है। अगर मैं अपना गाना फ्री में कोई रिकॉर्डेबल को दे रहा हूँ तो मैं खाऊंगा क्या, मैं क्या खाऊंगा, मैं मेरा घर कैसे संभालूंगा। आई हैव टू पे माय रेंट्स, आई हैव टू पे अ लॉट ऑफ थिंग्स, यस, है ना। मेरा तो एक्सपेंसेस है। मेरा मम्मी पापा ने, आज मैं घर पे झगड़ा करके मैं आ गया बॉम्बे में, यार मुझे बड़ा बनना है, एंड टुडे इफ आई एम अप्रोचिंग अ रिकॉर्डेबल, मेरा पैसा भी नहीं आ रहा है, और चलो कोई रिकॉर्डेबल बोलते कि यार तेरा गाना रिलीज करने के बाद आई विल गिव यू द मनी। वो पैसा आ रहा है, तेरे पास आ रहा है पैसा, कितना पैसा आ रहा है, कितना, कब 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 पैसा आ रहा है, ये तो है। right? This is the problem. People are thinking that यार मैं अगर गाना रिलीज कर देता हूँ मुझे पैसा मिल जा रहा है, but today the question is that I come from a recordable background. I can say it very bluntly and very, you know, अभी मैं नहीं हूँ, so I can say, I can speak out. मेरे को कोई डर नहीं है। Yeah, you should never give your song for free. But today, Anik, I'll tell you something. If there are artists who does not have to go and sign with any kind of record labels, किसी के साथ sign नहीं है, but what they're doing, ये इन लोग independent distribution कर रहे हैं। चलो, we will have this conversation on an independent music distribution in the next meeting that we're gonna have, ठीक है? And the last thing which Abhay, which I wanted to discuss, ask you, like, what do you think about the live scene? Like, कि तुझे क्या लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए एक लाइव सीन, लाइव शो में जाना कितना इंपॉर्टेंट है, और कहाँ तक जाना इंपॉर्टेंट है? सिर्फ छोटे मोटे क्लब शोज करना इंपॉर्टेंट है, या यू नो तेरा कॉर्पोरेट शोज करना इंपॉर्टेंट है, कोई फेस्टिवल में बजाना इंपॉर्टेंट? व्हाट डू यू थिंक दैट इज व्हिच इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे? एज अ मनी पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं तो सर्वाइवल के लिए आर्टिस्ट को लाइव कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लाइव म्यूजिक, लाइव सिंगिंग एंड एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको एज अ कुछ क्रिएटिव काम करने को मिले, उसमें फिर पैसा भी नहीं देगा, क्योंकि फिर वो फेम आपको फेम दिलाएगा ना। अगर फेम चाहिए तो फिर मनी छोड़ना पड़ेगा, दोनों एक साथ आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप फेम को चाहिए तो फिर आप एक ही चीज को अप्रोच करो, क्योंकि अगर आप पैसे के पास जाओगे तो फिर आप उसी में वो भी कर सकते हो, बहुत बहुत आता है। पर अगर आपको फेम भी चाहिए तो फिर वो थोड़ा सा चैलेंजेबल हो जाता है, क्योंकि फिर आर्टिस्ट जो है ना वो एक प्रोस्पेक्टिव से नहीं सोचता, वो उसके पास वो दो तीन चीजें सोचता है। एक चीज अच्छे से कर लीजिए, अगर हमने एक चीज अच्छे से की, जैसे मैंने गाने बनाए, आज मैंने गाने सेल किए, जैसे सारे गामा जी, जस्ट म्यूजिक अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे फिर वो उसका रिजल्ट मिलेगा, अपने आप मिल रहा है। वो शुक्र भाई आपने देखा है और हम लोग देखते हैं। बस यही है कि लाइव तो नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें अभी बहुत सीन खराब चल रहा है लाइव में भी, मैं अगर बात करूँ तो, कि
हर जगह वही हो गया है कि आपकी प्रोफाइल भेजिए, आपकी सिंगिंग नहीं सुनेंगे वो 2 मिनट भी, फोन में आपके वीडियोस नहीं देखेंगे, आपने इंस्टा पर क्या डाला या कहीं पर भी कोई भी सोशल मीडिया पे आपने कुछ भी पोस्ट किया है, वो आपकी आवाज नहीं सुनेंगे, वो नंबरिंग देखेंगे। अच्छा कमेंट्स कितने हैं इसके, इसके व्यूज कम आ रहे हैं यार, नहीं नहीं अभी इसको मत बुलाओ, अभी इसको बुलाओ, इस सिंगर के ज्यादा व्यूज हैं, इसको बुलाओ। सो सब चीज नंबरिंग पे ही है, और जो कि मुझे लगता है बहुत खराब चीज है इंडिया की। वो भी इंडिया में बहुत पुश कर रहे हैं आजकल, मुझे लग रहा है जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लाइक डिवाइन, बंदिश प्रोजेक्ट्स काफी समय से हैं वो, तो मतलब, और वो इंस्पिरेशन लगती है कभी कभी यंगस्टर्स के लिए कि इतने समय से वो आज भी किसी भी इंसान को या किसी भी लेवल को अपना वो आर्ट नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असलियत क्या है, वो क्या करने वाले हैं फिर आगे। तो तुझे सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मनी पर्सपेक्टिव आउट हियर? पैसा का तू क्या सोच रहा है? मतलब अगर कोई आर्टिस्ट का गाना, तू अगर अपना गाना लेके कोई किसी के पास जा रहा है, तुझे पता है कि तूने इतना पैसा इन्वेस्ट किया वो गाने के ऊपर, यस तूने वीडियो बनाया, यस तो यस व्हेन यू यस, गोइंग टू अ सर्टेन रिकॉर्ड लेवल, रिस्क लेना पड़ता है, और गाने करने पड़ते हैं कंपनीज के साथ। सबसे बट ये वही रिस्क सीन रहता है कि तू कितना दिन तक लेगा, कितना साल तक लेगा? तेरा तो एक यार, टाइम भी पार हो जाएगा ना, क्या होता है ना भैया, अभी टाइम एज वेल। अभी हम लोग कर रहे हैं, गाने कर रहे हैं, हम लोग ने आपको डिलीवर कर दिया, 2 महीना हो गया है। सो क्या हो जाता है ना, वो ट्रस्ट, और फिर वो आपकी एक इमेज उन्हें सब नंबर पे है, वो आपको जब भी फोन आपका उठाएंगे जब आपके नंबर उतने होंगे, आपके पास कोई पावर होगी। वरना आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, आप कुछ नहीं, आप कचरा हो, आपका गाना हमने ले लिया ना, उसके बाद वो आ जाएंगे अपनी वाली पर, और वो आते हैं, और वो हर बार आते हैं। वो इसलिए भी आते हैं, चाहे वो सारेगामा हो चाहे वो जियो, मैं किसी लेवल की बात नहीं करूंगा, पर हर एक लेवल अंदर जो लोग हैं ना, वो बहुत बहुत डिस्टर्ब है। आर्टिस्ट उनका So, भी एक अलग, और हमारा भी फिर एक अलग प्रॉब्लम है। वो भी ये सोचते हैं कि yes, हम absolutely. हम एक So Dinesh Sajnani is a friend of mine. He has his own company. He makes ad film season two. You know, it's a very old friend of mine. उनका खुद का company है, and so he has written something out here that during an ad film pitch, as a rule, if my musician and singers track doesn't get approved by the client, I ensure that I at least pay 50% of the effort. So that is I think this is the way the approach should be. अगर कोई रिकॉर्ड लेबल के पास अगर हम जाते हैं यार, दे शुड वैल्यू द आर्टिस्ट, वैल्यू द प्रोडक्शन, दे शुड वैल्यू द काइंड ऑफ सॉन्ग्स। अगर अगर अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है रिकॉर्ड लेबल्स में कि सब अलग अलग लोग बैठे हैं, सब अलग अलग लोगों का अलग अलग थॉट प्रोसेस है, सबका चॉइसेस भी अलग है। कोई ए रिकॉर्ड लेबल में जो टॉप में बैठे हैं, उन लोग बोलेंगे यार मुझे गाना चाहिए किंग जैसे गाना चाहिए। दूसरा कोई आके बोलेंगे यार मुझे गाना चाहिए शुभ जैसे चाहिए, मुझे किसी गाना चाहिए ब्रूनो मार्स का जैसे चाहिए। तो भाई तुम अपने दिमाग में यू आर ऑलरेडी कैटेगराइजिंग द सॉन्ग्स। तुम गाना को तुम अगर कैटेगराइज कर ले रहे हो, तुम अगर ओपन नहीं हो रहे हो गाने के लिए, देन व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी? ये आर्टिस्ट के लिए क्या ऑप्शन रहेगा? हाउ कैन आर्टिस्ट कम टू यू एंड टेल यू दैट पिच यू द सॉन्ग? तुम पहले से बोले यार ये तो नहीं चलने वाला है, तुमने तो कुछ कोशिश ही नहीं किया, मेंटेलिटी, एंड देन यू सी। मेंटेलिटी पता है क्या है, हर चीज मेंटेलिटी है। इतने गाने चले उनके फीड पे इंस्टाग्राम पर, किसी भी, जैसे आपने बताया एक बंदा जो लीड कर रहा है उसको चाहिए शुभ के गाने, तो वो शुभ के गाने बहुत सुनता है, कहीं ना कहीं इंस्टा पे उसकी फीड पे अपने सॉन्ग्स उसी के आते हैं, अब उसको वैसा ही चाहिए। तो ये नहीं पता कि और वैसे ही भी चाहिए। कोई दूसरा है जो एक्चुअल अलग भी करता है। और कभी भी भैया ने, अनिक भैया ने बहुत अच्छी बात बोली, कभी भी किसी के जैसा नहीं चलता। अगर आप बादशाह की तरह, मैंने आज देखा है बादशाह की तरह, आज यहीं पर हमारी मुंबई की स्पेस में कम से कम 200 मिल जाएंगे आर्टिस्ट जो बादशाह की तरह सॉन्ग्स बना रहे हैं, बिकॉज ऑफ बादशाह इस तरह से आगे बढ़ा है और इस तरह से बादशाह का म्यूजिक जा रहा है, तो हमें उसकी की तरह देना पड़ेगा। वो भी बंधे हुए हैं क्योंकि लेबल ही वही मांग रहा है, क्योंकि बादशाह ऐसा म्यूजिक बना रहा है, हमको वैसा ही चाहिए, क्योंकि हमको लेवल के ऊपर जाना है। एक दूसरे का कॉम्पिटिशन भी है ना लेवल का, मान लीजिए सारे गामा का टी सीरीज से तो कॉम्पिटिशन है। अब वो उस मेंटली से ना आर्टिस्ट खत्म हो जाता है। आर्टिस्ट का प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, एग्जैक्टली। आर्टिस्ट हमेशा यूनिक, इसलिए तो वो लाखों में एक आर्टिस्ट बनता है, वो टाइम लगता है के पीछे। हो सकता है आज मैं हूं या आप, कोई भी हो सकता है, नहीं पता कि कब दिमाग फ्लिप हो जाए, कब हमारी क्या परेशानी आ जाए जिस वजह से हमको पैसों के लिए काम करना पड़ जाए, तब जाके हमारा आर्ट खराब होता है। और वो चीज मैं अभी इसीलिए बहुत, मैं बता रहा हूँ ना कि सिर्फ पेशेंस ही आर्टिस्ट को आगे ले जा सकता है। पेशेंस मना करना सीखना पड़ सकता है। आर्टिस्ट जब तक मना करना नहीं सीखेगा ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर यस आर्टिस्ट आई रिमेम्बर
वो have चीज this conversation. वो चीज बहुत बड़ी है भैया, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। क्योंकि मैं अभी तक जिस स्पेस में यहाँ तक भी मेरा दिमाग अगर पहुंचा है तो वो मेरे आसपास के लोगों की वजह से पहुंचा है। मैं जिनके साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, वो पूरा एटमॉस्फेयर मुझे आज आगे लेकर गया। मैं अकेला आगे नहीं बढ़ सकता कभी, मुझे आसपास के लोग ही आगे बढ़ा सकते हैं, वो मेंटेलिटी। Right. पर Absolutely. आपने अगर पहले ही सोच लिया कि नहीं यार मुझे फेम की, क्योंकि बेचारे आर्टिस्ट को भी ये चाहिए ना कि यार वो फेम की वजह से हमको पूछेंगे, तो आर्टिस्ट को भी लगेगा कि नहीं यार चलो पहले फेम वाले गाने बनाते हैं। सबसे बड़ी आपको मैं एक चीज बताता हूँ शुरू भैया, सबसे बड़ी हमारे से गलती क्या होती है, सभी आर्टिस्ट से गलती क्या होती है? Absolutely. नहीं, ठीक है अभय, I think एक एक no, चीज I'm बताता हूँ, like, एक हाँ छोटी सी बताओ. बड़ी गलती क्या होती है, हम लोग ये सोच कर जाते हैं कि ऐसा गाना बनाएंगे, हाँ, और सभी उस पर हाँ करते हैं। हर एक सिंगर म्यूजिशियन ये सोच के गाने बनाता है स्टार्टिंग में कि पहले हम लोग वायरल हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग हमारी मर्जी का गाना बनाएंगे। क्या होता है इसमें हमेशा, अब जब आप गाने बना देते हो आप हिट हो जाते हो, अब आज आप हिट हो गए, अब आपका मैनेजर, आपका पीआर, आपका लेवल आपका हाथ पकड़ लेगा क्योंकि आप साइन हो चुके होगे तब तक। अब आप चाहते हो वो आर्ट नहीं कर सकते जो आप चाहते थे कि फेम होने के बाद हम करेंगे, नहीं, अब आपको वैसा ही म्यूजिक जीवन भर बनाना पड़ेगा क्योंकि आप उसी से वायरल हुए। देखो मैं तुझे या देखो कुदरत के नजारे, वो वैसा ही म्यूजिक बनाएगा। मीट ब्रो सबसे बड़ा एग्जांपल है, मैंने उनका काम भी किया है, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, आज भी वो बंदा वैसे ही गाने दे रहा है क्योंकि लेबर्स को वैसा ही चाहिए कि तूने चिटिया कले में भी जो बेबी डोलन सोनी थी इसे गाने दे दिए, तो अब उनको वैसा ही चाहिए और अपने टेस्ट वैसा ही दिया है, तो आप तभी चलोगे जब वैसे गाने दोगे। तो बेचारे मीट ब्रोज और कोई भी क्या करे, उनके गाने अच्छे अच्छे हैं अभी भी, एक्सपेरिमेंटल भी हर तरह के, पर वो निकाल नहीं सकते क्योंकि लेबल्स को चाहिए नहीं। ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भैया, ये 10 मिनट या 20 मिनट कॉन्वर्सेशन से बहुत बड़ा है। हाँ देख, आई थिंक आई डोंट, मतलब मैं ये कॉन्वर्सेशन को और लंबा नहीं करना चाहता, बट यू टोल्ड सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत अच्छा पॉइंट्स उन्हें बताया। और आई थिंक see the idea is that because I have a couple of very close friends of mine, I manage a lot of artists, तुझे भी पता है पैन इंडिया से मैं बहुत आर्टिस्ट मैनेज करता हूँ, आई नो अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट एंड आई सी द चैलेंजेस। सो दिस इंटरव्यू, दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, दिस इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ डिस्कशन। आई एम गोना कीप on continuing with these sessions, ठीक है, with a lot of other artists. I want the people to be educated, I want people to know that यार क्या चल रहा है लाइफ में, ठीक है, I want people to know कि क्या चल रहा है। एक बात बोली भैया अनिक भाई ने, किसी के जैसा कभी नहीं चलता, ये सच में गुरु मंत्र है, ये बहुत रियल है। और तुझे पता है कि मेरा मिशन क्या है, we have the same, we have the same thought process and all. So guys, that is Abhay Tyagi for you today. Thank you so much Abhay for your time and मिलते हैं बहुत जल्द और we will have more conversations and guys, Abhay से if you is a fantastic singer, producer as well. So कोई भी काम आए तो भाई को याद करना and let's be in touch. Let's just educate the people. I'm a very small person in this industry. फिर भी जितना भी मुझे knowledge है, जो भी है, I would like to share so that I can make sure that my artists are doing good and they get the right place and my friends and family all. Artists को मैं कभी अलग नहीं समझता हूँ. I always consider you guys as my family. That's how we all grow. That's a journey that we all have together. So इसके बाद से I will also start bringing in a lot of big celebrities, big playback singers who will join the conversation and we will have sessions with them. We will also start with a small podcast where I feature artists. There will be live podcasts, live shows रहेगा, बहुत कुछ रहेगा. So this is how we're gonna work. Abhay, thank you so much again for your time. You have a wonderful day. सभी को and ध्यान रखना अपना. बहुत बहुत धन्यवाद. See you guys. थैंक यू. Okay. बहुत लोग जुड़े हैं, ठीक है, थैंक यू. No worries, brother. चलो, see you. Bye bye guys. Thank you so much for your time. Yeah. बाय सुरू भाई. Bye.